شاعر نے کہا تھا کہ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اور شاعر نے یہ بھی کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ یہ ہمارا مل کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، بڑے باواز بلند اللہم مولانا محمد وعلا آل سیدنا وعلا آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، اسلام میں عورتوں کا مقام کیا ہے؟ اسلام میں عورتوں کی اہمیت کیا ہے؟ میں نے پچھلے جمعہ بیٹی اور بہن کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ آج ایک بیوی کا کیا مقام ہے، بیوی کی کیا اہمیت ہے؟ یاد رکھو مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں اس انداز میں مبعوث ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو ہر موڑ پر، زندگی کے ہر راستے پر نبی کریم کو آپ کے لیے آئیڈیل بنا دیا، نبی کریم کو آپ کے لیے نمونہ بنا دیا کہ اگر نبی کریم کو آپ باپ کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو باپ کے لیے نمونہ ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اولاد کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو نوجوان بیٹوں کے لیے نمونہ ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھائی کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو بھائی کے لیے آئیڈیل ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شوہر کے انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں، شوہر کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کے مردوں کے لیے نبی کریم کی زندگی آئیڈیل نظر آتی ہے، نمونہ نظر آتی ہے۔ لیکن ضرورت ہے کہ نبی کریم کی زندگی کو اپنایا جائے، انہیں اپنے اندر ڈھالا جائے، نبی کریم کی سیرت کو اپنائی جائے۔ قرآن کریم میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو، اپنی بیویوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو۔ ہو سکتا ہے کہ تم اس کی کسی بات کو ناپسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ اسی میں بہت زیادہ بھلائی رکھا ہو، خیر کثیر رکھا ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں آپ کی بیوی کی کوئی بات بری نظر آ رہی ہے، آپ کی بیوی کی کوئی بات آپ کو خراب لگ رہی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی خراب میں، اسی برائی میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھلائی رکھی ہو، کوئی اچھائی رکھی ہو۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے برادران اسلام، بیوی کا مقام کیا ہے، بیوی کی اہمیت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور کے دو واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کتنی محبت کرتے تھے، اپنی ازواج مطہرات سے کتنے پیار کرتے تھے۔ سماعت کرتا چلے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے وَيَكُونُ فِي مِحْنَةِ أَهْلِهِ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر کے کاموں میں عورتوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھی جھاڑو لگا دیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی
कभी कभी बिस्तर समेट दिया करते थे, कभी कभी कपड़े को धो दिया करते थे, कभी कभी नबी करीम आधा गोद लिया करते थे। हत्ता के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर के सारे काम काज किया करते थे। जो काम औरतों के जिम्मे है, जो काम करने की जिम्मेदारी औरतों पर है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो काम खुद किया कर लेते थे। लेकिन आज के दौर में आ जाए, आज हम अपने आपकी जिंदगी को देखें, अपने गरेबान पर झांक कर देखें कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया होकर, इमामुल अंबिया होकर, अफजलुल बशर होकर औरतों के कामों में हाथ बटाया, अपनी बीवियों का साथ दिया, अपनी बीवियों के कामों में अपने आप को शामिल किया। लेकिन आज के मर्दों का हाल ये है, आज के शौहरों का हाल ये है कि अपनी बीवियों पर जुल्म करते नजर आते हैं, अपने बीवियों से सारे काम काज लेते नजर आते हैं। हाल तो ये है कि आपकी बीवी बिस्तर पर बीमार पड़ी है, आप उससे कपड़ा धुलवा रहे हैं, आपकी बीवी बिस्तर पर बीमार पड़ी है, आप उससे खाना पकवा रहे हैं, आपकी बीवी ठंडी में बुखार में तप रही है और आपको घर के झाड़ू पोछा की पड़ी है। बिरादरान इस्लाम, अगर आप नबी करीम से सच्ची मोहब्बत करते हैं, नबी करीम की मोहब्बत आपके दिलों में अगर मौजूद है, आपके दिलों में अगर नबी करीम की मोहब्बत बसती है, तो आपको नबी करीम की जिंदगी को अपनाना होगा, नबी करीम की जिंदगी को आइडियल बनाना होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम नबी करीम से नाम के मोहब्बत करते हैं, उनकी सीरत को अपनाने की कोशिश नहीं करते, उनकी सीरत को आइडियल बनाने की कोशिश नहीं करते। बिरादरान इस्लाम, अगर नबी करीम की मोहब्बत को हासिल करना चाहते हैं, नबी करीम की मोहब्बत को पाना चाहते हैं, तो नबी करीम के तरीकों को अपनाए, नबी करीम की जिंदगी को अपनाए, नबी करीम की सीरत मुबारका को अपनाए और अपनी जिंदगी को इस अंदाज में गुजारे कि आप अपनी बीवियों से उसी अंदाज में मोहब्बत करें, आप अपनी बीवियों से उतनी ही मोहब्बत करें जितनी मोहब्बत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से किया करते थे। लेकिन अफसोस की बात है, आज हमारे दिलों में बीवियों के प्रति मोहब्बत नहीं है। आज माशरे में जब बुराई है उस पर भी अगर वक्त मिले तो बोलने की कोशिश करूंगा। बिरादरान इस्लाम, बीवी का मकाम क्या है, एक बीवी का शौहर के लिए अहमियत क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम ली अहलिही व अना खैरुकुम ली अहली, कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है, तुम में से बेहतरीन आदमी वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो, जो अपनी बीवी के लिए अच्छा हो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, व अना खैरुकुम ली अहली, और मैं तुमसे सबसे ज्यादा बेहतर हूँ, मैं तुम में सबसे बेहतरीन आदमी हूँ क्योंकि मैं अपनी बीवी के लिए अच्छा हूँ। बिरादरान इस्लाम, अगर इंसान दुनिया की नजर में अच्छा बनना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी बीवी की नजर में अच्छा बनना पड़ेगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि एक मर्तबा अरब की 11 औरतें एक साथ जमा हो गई। तमाम औरतों ने अपने अपने शौहरों की बुराई बयान करना शुरू कर दी। किसी ने अपने शौहर की बदसलूकी बयान की, किसी ने अपने शौहर की शिकायतें लगाई, किसी ने अपने शौहर की ग़ीबत की, किसी ने अपने शौहर के बदअमाल बयान किए। उनमें से एक औरत जो 11वीं औरत थी, जिसका नाम उम्मे ज़रा था, वो बयान करती है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि उम्मे ज़रा बयान करती है, मैं गरीब घर की बेटी हूँ, मैं मशक्क़त और तंगी के साथ ज़िंदगी गुजर बसर करती थी, लेकिन अबू ज़रा ने मुझसे शादी करके, उम्मे ज़रा के शौहर का नाम अबू ज़रा था, वो औरत बयान करती है कि अबू ज़रा ने मुझे ऊँट अता किया, मुझे घोड़े अता किए, मुझे मवेशी अता किए, मेरे नाम पर बागात कर दिए, मेरे नाम पर खेत खलियान दे दिया, मुझे महल्लात बना कर दिए। हत्ता के अब हाल ये है कि मेरे घर में बड़े बड़े मटके में दूध भरे रहते हैं और मेरे शौहर ने मुझे इतने जेवर अता किए कि मेरे कान पहनने से कासिर हो गए हैं। मेरे शौहर ने मुझे सोने चांदी से भर दिया, मुझे सोने चांदी के अंबार लगा दिए। वो बयान करती है कि मैं अगर कभी हमारे दरमियान झगड़ा हो जाता है, कभी हमारे दरमियान
अनबन हो जाती है। मैं अपने शौहर को बुरा भला कहती हूँ, मैं अपने शौहर को बुरी बातें कहती हूँ। वो औरत बयान करती है मेरा शौहर बुरा नहीं मानता, मेरा शौहर मुझे कुछ बुरा नहीं कहता, मैं अपने शौहर से बहुत खुश हूँ, मेरा शौहर मुझसे बहुत खुश है। हाल ये है कि मेरे शौहर ने मेरे लिए पाबंदियां रख ली है, मेरे लिए खिदमत गुजार औरतों को मुंतखब कर लिया है जो हमेशा मेरी खिदमत के लिए हाजिर रहती है। वो उम्मे ज़रा बयान करती है मेरा शौहर मुझे हमेशा कहता है ऐ उम्मे ज़रा खूब खाया पिया करो, अपनी सेहत को ठीक रखा करो, अपने बाल बच्चों को खूब खिलाया करो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये सारा वाक़या, ये सारा किस्सा अपने शौहर नबी करीम को सुनाया तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया ए आयशा सुनो, मैं अपनी बीवी के लिए उतना ही अच्छा हूँ जितना कि अबू ज़र अपनी बीवी उम्मे ज़रा के लिए अच्छा था। बिरादरान इस्लाम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अबू ज़र जितना अच्छा अपनी बीवी के लिए है, मैं भी अपनी बीवी के लिए उतना ही अच्छा हूँ, उतना ही बेहतरीन हूँ। तो शौहर का मतलब क्या होता है? अपनी बीवी से मोहब्बत करना। अबू ज़रा की जिंदगी को देखे कि अबू ज़रा ने एक गरीब बाप की बेटी को शादी किया, एक मशक्कत में जिंदगी गुजारने वाली लड़की को अपना शरीके हयात बनाया और उसका अपना बाजू बनाकर, अपनी ताकत बनाकर उसको माला माल कर दिया और उसको अपना शरीके सफर बना दिया। लेकिन आज हमारा ख्याल क्या है, हमारा माहौल कैसा है? आज अगर हमारी बीवी अगर हमसे थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर ले तो हमारे हाथ उड़ जाते हैं। अगर हमारी बीवी थोड़ी हमसे अकड़ाना अंदाज में, तकब्बुराना अंदाज में अगर बात कर ले तो हमारे दिमाग बोझल हो जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम मर्दों पर औरतों के कुछ हुकूक हैं, क्या हम पर भी कुछ ज़रूरी है, क्या हम औरतों के लिए कुछ काम करें? मेरे आका ने इरशाद फरमाया 4 ऐसे हुकूक हैं जो मर्दों को अपनी बीवी के लिए करना होगा, जो मर्दों के जिम्मे अपनी बीवियों के प्रति है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पहली जिम्मेदारी ये है कि वो अपनी बीवी को वैसा खाना खिलाए जैसा खाना वो खुद खाते हैं। दूसरी जिम्मेदारी ये है कि अपनी बीवी को वैसा कपड़ा पहनाए जैसा कपड़ा खुद पहनता है। तीसरी जिम्मेदारी ये है कि अपनी बीवी को कभी बुरा भला ना कहे, उन्हें गाली गलौज ना करे। और चौथी जिम्मेदारी ये है कि अपनी बीवी पर कभी हाथ ना उठाए, उन्हें ना मारे। अब जरा इन चारों कामों की तफसील में आते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अपनी बीवी को वैसा खिलाओ जैसा खाना तुम खाते हो। क्या आज मर्द इस जिम्मेदारी को अदा करते हैं? क्या नबी के इस कौल पर आज मर्द अमल करने की कोशिश करते हैं? आज हाल ये है कि अगर हमें घर का खाना अच्छा नहीं लगता, हमारे मुंह में घर का खाना मज़ेदार नहीं है, तो हम होटलों पे चले गए, बिरयानी खा लिए, गोश्त चिकन तोड़ दिए और बीवी वही घर के खाने पर गुजारा कर लेती है। जबकि मेरे आका ने इरशाद ये फरमाया जितना अच्छा खाना तुम खाते हो उतना ही अच्छा खाना अपनी बीवी को खिलाओ। अगर आपको घर का खाना अच्छा नहीं लगता, आप होटलों में जाके खाना खा रहे हैं, तो आप पर यह लाजिम और जरूरी है कि आप अपनी बीवी के लिए अलग खाना लेकर आए। दूसरी जिम्मेदारी में मेरे आका ने फरमाया जैसा कपड़ा तुम पहनते हो वैसा कपड़ा अपनी बीवी को पहनाओ। इसका मतलब क्या है? ये नहीं कि आप जींस पहनते हैं तो अपनी बीवी को भी जींस पहनाए, आप टी शर्ट पहनते हैं तो अपनी बीवी को भी टी शर्ट पहनाए। आज कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी बहू बेटियों को पैंट शर्ट में घुमाने की कोशिश कराते हैं, अपनी बेटियों को बेटा बनाने की कोशिश करते हैं। हेयर कटिंग अलग, कपड़े की डिजाइनिंग अलग, कपड़े का ओढ़ना पहनना अलग। लेकिन आज मेरी जिम्मेदारी बीवियों की है। मुसलमानों, अगर आप अपनी बहू बेटियों को नेक और सालेहा बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी बेटियों को जिम्मेदार बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी बहू बेटियों को फातिमा जैसी सीरत दिलाना चाहते हैं, तो अपनी बेटियों को इस्लामी तौर तरीके बताए, इस्लामी तालीम सिखाए, इस्लामी कल्चर अपनाने की तरगीब दें। बिरादरान इस्लाम, मेरे आका ने इरशाद फरमाया जैसा कपड़ा तुम
तुम पहनते हो वैसे ही लिबास, वैसे ही कपड़े अपनी बीवी को पहनाओ। आज एक मर्द करता क्या है, 3000 का कमीज पहन लिया, 5000 का जींस पैंट पहन लिया, 2200-2500 का चप्पल पहन लिया, चश्मे 2000-3000 के। एक मर्द अपने ऊपर 15 से 20,000 का खर्च करता है। अगर वही उसकी बीवी 3000 की साड़ी मांग ले, 5000 का लहंगा मांग ले, तो शोहर का चेहरे का रंग बदल जाता है, शोहर का दिमाग घूम जाता है कि इतना खर्चा कैसे करूं। एक मर्द अपने ऊपर 20 से 25,000 खर्च करने को तैयार है और वहीं पर अपनी बीवी के लिए 5000 साड़ी में झगड़ा, 3000 के लहंगे में झगड़ा। ये झगड़ा कब देखने को आता है, शादी के मौके पर जब दुल्हा दुल्हन को लेने आता है, दुल्हा खुद 30,000-35,000 का कोट पैंट पहन के आता है और अपनी बीवी के लिए 4,000-5,000 का लहंगा लेकर आता है। और उसी लहंगे लेकर जो खुशी का समा होता है, एक खुशी का माहौल होता है, झगड़े में तब्दील हो जाता है। मुसलमानों, अगर आप अपने लिए महंगा कपड़ा खरीद सकते हैं तो आप पर जरूरी है कि अपनी बीवी के लिए महंगा कपड़ा खरीदें। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप 10,000 का पहनते हैं तो अपनी बीवी को भी 10,000 पहनाए, लेकिन इतना जरूर करें कि अगर आप 10,000 का पहनते हैं तो अपनी बीवी को कम से कम 5-7 हजार कपड़ा जरूर लेकर दें। ये एक मर्द की जिम्मेदारी है। इसलिए मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, जैसा कपड़ा तुम पहनते हो वैसा ही कपड़ा अपनी बीवी को पहनाओ। तीसरी जिम्मेदारी, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अपनी बीवी को बुरा भला न कहो, अपनी बीवी को गाली गलौज न करो। आज इस चीज को भी हमारे मुआशरे में जायजा लें। हमारे मुआशरे घर घर में देखें, अगर बीवी से कोई अनबन हो गई, अगर बीवी से कोई बात पड़ गई तो इंसान सिर्फ बीवी को नहीं, बीवी के मैके को गाली देते हैं, बीवी के खानदान वालों को गाली देते हैं, बीवी के सारे खानदान को गाली गलौज में लपेट कर रख देते हैं। जबकि मेरे आका ने फरमाया, बीवी को बुरा भला न कहो, गाली गलौज न करो। आज हम नबी की इस तालीम पर भी अमल नहीं करते, नबी के इस फरमान पर भी आज अमल नहीं करते। बिरादरान इस्लाम, नबी की सीरत को अपनाए, नबी के किरदार को अपनाए, नबी को आइडिया बनाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और जब रब के सामने चेहरा दिखाने का मौका मिलेगा तो रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे आका ने चौथी बात इरशाद फरमाई, वला तज़रिबिल वजहा, अपनी बीवी के चेहरे पर ना बाता मारो। इसमें मेरे आका ने चेहरे की तफसीर फरमाई, लेकिन मैं कहता हूँ कि बीवी पर कभी हाथ ना उठाए, बीवी को कभी ना मारे। लेकिन आज समाज का जायजा ले, कभी चावल कम कर जाए, कभी खाने में लेट हो जाए, कभी सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए तो शौहर को गुस्सा आ जाता है, गुस्से में आग बगोला हो जाता है और अपनी बीवी पर हाथ उठाता है। और मारने का आलम तो ये है कि उस वक्त तक मारते रहते हैं जब तक उसकी बीवी बेहोश ना हो जाए, जब तक उसकी बीवी जमीन पर गिर ना जाए, जब तक उसके बदन पर हाथ लगने के दाग ना पड़ जाए, उस वक्त तक मर्द अपने बीवी को मारते रहते हैं। मुसलमानों, ऐसा गलत काम ना किया करें, अपनी बीवी पर हाथ ना उठाए। मैं यहाँ पर एक बात और बताता चलूं कि मेरे आका ने वला तज़रिबिल वजह का इस्तेमाल किया कि बीवी के चेहरे पर ना मारो, बीवी के चेहरे पर हाथ न लगाओ। मतलब क्या है मुसलमानों, एक आम सी बात आपको बताता चलूं, बीवी तो क्या, कभी किसी औरत के चेहरे पर हाथ ना लगाना, कभी किसी औरत के चेहरे पर तमाचा ना मारना, क्योंकि अल्लाह ने औरत को खूबसूरत बनाकर भेजा है। अल्लाह ने इस दुनिया की बेहतरीन चीज, खूबसूरत चीज अल्लाह ने औरत को बनाया और औरत हसीन और जमील अपने चेहरे से लगती है, औरत खूबसूरत अपने चेहरे से लगती है। मर्द अपने हाथों से, अपने तमाचे से अपने बीवी चेहरे पर मारे तो आपकी बीवी का चेहरे का नक्शा बदल सकता है, औरत के चेहरे पर स्याही पड़ सकती है, औरत के चेहरे का नक्शा खराब हो सकता है। तो अल्लाह ने औरत को जिस अंदाज के साथ अल्लाह ने तखलीक फरमाई थी, अगर आप बीवी को मारेंगे तो अल्लाह की खिलकत में बदलाव आएगा, अल्लाह की तखलीक में बदलाव आएगा। इसलिए कभी बीवी के चेहरे पर हाथ न लगाए, बीवी के चेहरे को ना मारे, अगर मारने की जरूरत पड़े तो इधर उधर मारे। हद से ज्यादा जब गलती हो जाए तब। एक और बात बताता चलो, आज एक मर्द होता है, मैं भी एक मर्द हूँ, आपके अंदर भी मर्दाने फितरत है कि अगर बीवी से कोई ऐसी गलती हो जाए जो मर्द पर बहुत ज्यादा मशक्कत का बायस बनती है, जिससे मर्द की इज्जत को ठेस पहुंचती है,
جس سے مرد کی آبرو کو ٹھیس پہنچتی ہے، اس وقت مرد مارنے پر آ جاتا ہے۔ لیکن فقہا بیان فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کو ایک غلطی پر نہ مارو، ہو سکتا ہے دوسری چیز اس کے اندر اچھائی ہو۔ اگر تمہاری بیوی کے اندر 2 برائی ہو تو پھر بھی نہ مارو، ہو سکتا ہے تیسری چیز اس کے اندر اچھی ہو۔ اپنی بیوی کے اندر اگر 40 برائیاں جمع ہو جائے پھر بھی اسے نہ مارو، ہو سکتا ہے اس کے اندر 41ویں بات اچھی ہو۔ یہاں تک کہ فقہا بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی بیوی کے اندر 99 برائیاں پائی جائے، 99 خرابیاں پیدا ہو جائے، پھر بھی بیوی کو نہ مارو، ہو سکتا ہے اس کی 100 والی عادت، 100 والی عادت اچھی نکل جائے۔ فقہا بیان کرتے ہیں جب 100 عادتیں خراب ہو جائے، جب اس کی 100 فطرتیں خراب ہو جائیں، ہر طرف سے بھی کوئی خرابی ہے اس کے اندر، تب بیوی کو چھوڑنے کی اجازت ہے، تب بیوی کو مارنے کی اجازت ہے۔ برادران اسلام، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، نبی کریم کی سیرت کو اپنائے، اپنی بیویوں کو کبھی تکلیف نہ پہنچائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب جنگ خیبر سے واپس آ رہے تھے، ایک اٹھنے پر آپ کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کسی جگہ پھسل کر گر گئی، میرے آقا بھی زمین پر گر گئے، آپ کی بیوی حضرت صفیہ بھی زمین پر گر گئے۔ اتنے میں ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے پاس دوڑ کر آتے ہیں تاکہ میرے آقا کو اٹھا لیا جائے، میرے آقا کو بچا لیا جائے۔ لیکن میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، جاؤ سب سے پہلے عورت کو بچاؤ، سب سے پہلے میری بیوی کو بچاؤ تو اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ صحابی رسول اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیتے ہیں، آہستہ آہستہ نبی کریم کی بیوی کے پاس پہنچتے ہیں، وہ کپڑا نبی کریم کی بیوی پر ڈال کر آپ کی بیوی کو اٹھا کر ایک سواری پر بٹھا دیتے ہیں۔ برادران اسلام، میرے نبی کی زمین پر گرے ہیں، آپ کی بیوی بھی زمین پر گری، لیکن میرے نبی نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو اٹھوایا کہ میری بیوی کی حفاظت کرو، میری بیوی کی جان بچاؤ۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ لوگ اگر ہم بھی کسی مصیبت میں گر جائے، ہماری بیوی بھی گر جائے تو ہمیں اپنی مصیبت زیادہ نظر آتی ہے، ہمیں اپنی مصیبت زیادہ نظر آتی ہے، ہم اپنی مصیبت کو بڑی سمجھتے ہیں پر اپنی بیوی کو حقیر سمجھتے ہیں، نادان سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں، نبی کریم شوہر کے روپ میں آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے نمونہ ہے، اس لیے نبی کریم کی سیرت کو اپنائیں، نبی کریم کو آئیڈیل بنا کر اپنی زندگی کو روشن و تابناک بنائیں، اپنے گھروں کو خوشحال بنائیں، کیونکہ جس گھر میں عورتیں خوش ہوں گی، جس گھر میں عورتوں کا ماحول اچھا ہوگا، انشاءاللہ العزیز وہ گھر آباد ہوگا، وہ گھر خوشحال ہوگا، اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی۔ میرے آقا نے ایک حدیث میں، آخری حدیث بیان کروں گا، میرے آقا نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مرد اس وقت تک جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا جب تک اس کی بیوی اس سے راضی نہ ہو جائے، جب تک اس کی بیوی خوش نہ ہو جائے مرد جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا۔ اور بیوی کا مقام تو یہ ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا زندگی میں کبھی جھوٹ بولنا جائز نہیں، کبھی بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں، لیکن 3 موقعوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں 3 موقعوں پر جھوٹ بولنا جائز۔ پہلا موقع، آپ جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولنا جائز۔ دوسرا موقع کہ 2 دشمنوں کے درمیان ملن پیدا کرنے کے لیے، 2 دشمنوں کے درمیان صلح پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز۔ بلا وجہ آپ کہاں نہیں کہ وہ تمہاری بہت تعریف کر رہا تھا، اس کو جا کر کے وہ تمہاری بہت تعریف کر رہا تھا، حالانکہ کوئی کسی کی تعریف نہیں کرتا، لیکن جھوٹ سے اگر دونوں کے درمیان ملن ہو جائے، دونوں میں صلح ہو جائے تو یہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اور تیسری وجہ ہے، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے، میرے آقا کی حدیث پاک ہے، جس بیوی کا مقام یہ ہو کہ زندگی کے کسی موڑ پر جھوٹ بولنا جائز نہیں، لیکن میرے آقا نے بیوی کو راضی کرنے کے لیے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے میرے آقا نے جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی۔ برادران اسلام، اس لیے اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔